السلام علیکم پیارے بچوں، یقیناً آپ نے پہلے تو اسباق کی تیاری تو اچھی طریقے سے کر لی ہوگی۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے، جس کا نام ہے خیبر پختونخوا۔ آپ یقیناً اس نام کو اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ کس صوبے کا نام ہے۔ تو جی ہاں، یہ ہمارے اس صوبے کا نام ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو پہلے صوبہ سرحد کے نام سے جانا جاتا تھا، NWFP کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام بدل کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ تو پیارے بچوں، پینسل سب نے ہاتھ میں اٹھا لیں اور اس کی مدد سے پہلے اسباق کی طرح تمام معنی اپنے پاس رف کاپی پر نوٹ کر لیں، تاکہ آپ کے پاس دوسرے اسباق کی طرح اس سبق کے بھی تمام معنی اور سوالات جوابات آپ کے پاس نوٹ ہو جائیں۔ تو چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف جو کہ موجود ہیں آپ کے صفحہ نمبر 20 پر۔ جی ہاں، تو یہ دیکھیں نئے الفاظ جن کے دیکھیں پر باشعور، کھنڈرات، اسکالر، تاریخ دان، آئین، فعال۔ تو پیارے بچوں، اب دیکھتے ہیں اس کے معنی۔ تو آئیے میرے ساتھ بورڈ پہ آپ دیکھیے اس کے معنی میں نے یہاں تحریر کیے ہیں، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 ہے باشعور، عقل مند، کھنڈرات، بوسیدہ عمارتیں، اسکالر، عالم فاضل، تاریخ دان، تاریخ سے واقف مطلب ہسٹری سے واقف، آئین، دستور، فعال، ہوشیار، سرگرم۔ تو اس سارے الفاظ کے معنی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور ان تمام معنی کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ رف کاپی پہ کرتی ہیں یا اپنی کتاب پہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ تمام معنی موجود ہونے چاہیے۔ یہ آپ کو سب کو دیکھ لیے ہیں اپنے۔ آئیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ یہ تو پتہ ہے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کون سے صوبے: پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا۔ ٹھیک ہے، یہاں کے باشعور اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان کے ریفرنڈم میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، یہاں کے باشعور یعنی عقل مند اور بہادر لوگوں نے جب پاکستان آزاد کروایا جا رہا تھا تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی کشمیر جا کے جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس کے علاوہ ایک اور جنگ ہوئی تھی جو انگریزوں اور مسلمانوں نے لڑی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی تھی، تو یہاں کے لوگوں نے اس میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ نوشہرہ چھاونی کا مطلب ہے کیمپ۔ نوشہرہ چھاونی میں موجود مقامی وہاں کے رہنے والے مقامی سپاہیوں نے بغاوت کی، نافرمانی کی، سرکشی کی، سرکشی کر کے اس جنگ کو شروع کیا، اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ اتنی زیادہ یہ شدید تھی کہ یہ مردان اور پشاور اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ یہاں کے غیور باشندوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی۔ یہاں کے غیور غیرت مند باشندے یہاں کے غیرت مند لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے، امانت دار ہے۔ تاریخی ہسٹری کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے اور کئی تہذیبوں کا امانت دار ہے۔ تہذیب کلچر، یا مانسہرہ میں اشوک اعظم کے تخت قطب تخت بائی میں بدھ مت کے کھنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں۔ مانسہرہ جگہ کا نام ہے۔ اشوک اعظم جو تھا وہ اشوک اعظم ایک ہندوستان میں راجا، اس کا نام ہے۔ اس کے قطب تخت بائی جگہ کا نام ہے، اور بدھ مت اس
जगह में अभी भी बुत मत के खंडरात, मतलब बोसीदा इमारतों के खंडरात, टूटी फूटी इमारतों के आसार, मतलब उनके नकूश, और सिकंदर आजम के ज़माने, सिकंदर आजम कौन था? फातेह था, वो भी जंगें लड़ता था उस ज़माने के। सिकंदर आजम, अशोक आजम और सिकंदर आजम के ज़माने के जो आसार है, नकूश है, अब तक वहाँ पर महफूज हैं, ठीक है, आसार नकूश। और मुल्की और गैर मुल्की तारीख दानों के लिए ख़ास तौर पर पुरकशिश का बायस है। और जब वहाँ पर हमारे अपने मुल्क के और गैर मुल्क के स्कॉलर आलिम फाजिल लोग और तारीख दान लोग, जो तारीख से जिनको मोहब्बत होती है, उनको वाक़फ़ियत होती है, स्कॉलर आलिम फाजिल लोगों को, उन लोगों के लिए ये बहुत ही पुरकशिश हैं, उन लोगों के बहुत ही दिलचस्पी का बायस रखते हैं। ये पुराने ज़माने के बुत मत के खंडरात और पुराने ज़माने की चीज़ें और सिकंदर आज़म के ज़माने के आसार वहाँ पर अब तक महफूज है। और हमारे स्कॉलरों के लिए, हमारे तारीख़दानों के लिए ये बहुत ही अहम मकाम रखते हैं, बहुत ही अहम चीज़ें हैं, उनको इन चीज़ों से बहुत लगाव होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पैराग्राफ तो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तख्तबाई में बुत मत के खंडरात और सिकंदर आजम के ज़माने के आसार अब तक महफूज हैं। खंडरात उस जगह पे अभी तक टूटी फूटी। सिकंदर आजम कौन था? एक फातेह था, जंग लड़ने वाला, जिसने जंगों में शिरकत की थी, उसका नाम सिकंदर आजम था। उसे फातेह के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने जंग को जीता था, के आसार अब तक महफूज है। उस ज़माने में जो खंडरात हैं, उस ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी बुत मत, उस ज़माने अब तक वहाँ पे चीज़ें महफूज हैं। कहाँ पर महफूज है? मानसेरा में एक जगह है, तख्तबाई में बुत मत के खंडरात और सिकंदर आजम के ज़माने की चीज़ें महफूज हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलरों और तारीख़दानों के लिए ख़ास तौर पर कशिश का बायस हैं। जो हमारे मुल्क के रहने वाले और गैर मुल्की सयाह स्कॉलर में आलिम फाजिल जो लोग होते हैं, जिनको इन चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, तारीख़दान भी वही लोग होते हैं जिनको पुरानी चीज़ों से लगाव, उनके लिए एक बहुत ही ख़ास तौर पर पुरकशिश का बायस है, मतलब उन चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में इसे सूबे पंजाब के साथ शामिल किया। अंग्रेज़ों ने इसको सूबे पंजाब के साथ, किसको? सूबे खैबर पख्तूनख्वा को सूबे पंजाब के साथ शामिल किया गया था। 1935 में इस एक एक्ट के ज़रिए इसे फिर 1935 में एक्ट मंजूर हुआ था, कि इसको एक अलग सूबा करार दिया जाए। सूबे, इसका नाम क्या था? ये सूबे पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या है। ये सूबे पंजाब के शुमाल मगरिब में वाक़या, इसलिए सूबे को शुमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP कहते थे। मतलब ये सूबे पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है, ये सूबे पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या, इसलिए इसको शुमाल मगरबी सरहदी सूबा NWFP कहते हैं। अब इस सूबे का नाम बदल के क्या नाम हो गया है? खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया है। इस सूबे का कुल रकबा कितना है? 74.521 मुरब्बा किलोमीटर है। इस सूबे की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है। ये आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान का नक्शा है। आपको सारे अपने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सारा कुछ इस नक्शे में नज़र आ रहा है। यहाँ की तकरीबन 99.5% आबादी का मज़हब इस्लाम है। 99 कितना? 99.5 जो % लोग हैं वो मुसलमान हैं। यहाँ की आबादी की अक्सरियत की मादरी ज़बान पश्तो है। इसके अलावा हिंदको, सराइकी, कोहिस्तानी और चित्राली यहाँ की बड़ी अहम ज़बानें हैं। इस सूबे की सरहदें शुमाल मगरिब में तारीख़ी दर्रे खैबर के रास्ते अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरिक़ में गिलगित बल्तिस्तान, मशरिक़ में कश्मीर और जनूब मगरिब में कबायली इलाके जात, जनूब बलूचिस्तान, जनूब मशरिक़ में पंजाब और इस्लामाबाद से मिलती हैं।
क्लियर हो गया। पेशावर को कोहाट से मिलाने वाली सुरंग दोस्ती टनल पाकिस्तान जापान दोस्ती की अजीमुशान मिसाल है। पेशावर को कोहाट से मिलाती है एक सुरंग, सुरंग पता है ना, जो बिल्कुल बंद होती है, जहाँ से अक्सर आप रेलगाड़ी को भी देखते हुए गुजरते हैं कि एक सुरंग के ज़रिए से गुजर, एक सुरंग बनाई गई जिसको दोस्ती टनल, जो किसकी दोस्ती की मिसाल है, पाक जापान से, जापान के लोगों से दोस्ती की एक अजीम मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा का सदर मकाम पेशावर और इस सूबे का सबसे बड़ा शहर है, जबकि सूबे का गरमाई सदर मकाम एबटाबाद है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 अजला पे मुश्तमिल है, इसमें 24 ज़िले हैं। इनमें पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, एबटाबाद वगैरह ज़्यादा 24 ज़िलों पे मुश्तमिल है, लेकिन इनमें ज़्यादातर मशहूर क्या है, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट, एबटाबाद वगैरह ज़्यादा मशहूर हैं। सूबे के बाद इसे कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल है। इन कबायली इलाकों में पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक नहीं होता, बल्कि जिरगा सिस्टम के तहत इनके फैसले होते हैं। यानी कबायली इलाका जात को तो आप जानते हैं कि बाज़ हिस्से में कबायली इलाका जात मुश्तमिल है और यहाँ पे वो कानून को नहीं मानते, कोई नहीं मानता। यहाँ पे वहाँ पे अपने जिरगे सिस्टम होते हैं, मतलब वहाँ पे एक जिरगा होता है जहाँ पे फैसला किया जाता है, जहाँ पे एक बुजुर्ग बैठ के तमाम गांव वालों का फैसला करते हैं और उन्हीं पे फिर वो अमल करते हैं। लेकिन कबायली अवाम खुद को पाकिस्तान का लाजमी जुज़ समझते हैं, लाजमी हिस्सा समझते हैं और वक्त पड़ने पर वतन की दिफा के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार और वक्त पड़ने पर अपने वतन की हिफाजत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आईने पाकिस्तान की रूह से सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है। आईने पाकिस्तान की रूह से सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है। हमारे सूबे का जो बड़ा होता है वो कौन सा होता है, वज़ीर आला। सूबे को अपनी कानून साज असम्बली और अदालत आलिया हाई कोर्ट है। गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह, जो दूसरे नंबर पर होता है, जिसे गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह और वफाक का नुमाइंदा होता है। सूबाई महकमे सूबाई वज़ीरों की निगरानी में काम करते हैं। तमाम सूबाई जो महकमे के काम होते हैं वो वज़ीर की और सरबराह वज़ीर आला की उसमें निगरानी में काम करते हैं। इनकी मदद के लिए हर महकमे में इंतज़ामी अफसरान होते हैं। इनकी मदद के लिए हर महकमे में इंतज़ामी अफसरान, इनकी मदद के लिए हर जगह पर इंतज़ामी अफसरान मौजूद होते हैं। सूबे के शुमाली इलाके सर्द इलाकों में शुमार होते हैं। शुमाली इलाके सर्द ठंडे इलाकों में शुमार होते हैं। यहाँ के कुछ इलाकों का दर्जे हरारत सर्दियों में -10 दर्जे से भी कम हो जाता है। यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है, -10 दर्जे तक से भी कम हो जाता है। जबकि गर्मियों में यहाँ का दर्जे हरारत तकरीबन 35 दर्जे सेंटीग्रेड तक रहता है, 35 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। यहाँ के जनूबी अजला बेहद गर्म है, जनूबी ज़िले जो हैं वो बेहद गर्म है और गर्मियों में इनका दर्जे हरारत तकरीबन 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक होता है। ये तो आपको पता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में रह रही हैं और गर्मियों में यहाँ का दर्जे हरारत कितना होता है और कितनी हद तक गर्मी हो जाती है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके खूबसूरती और दिलकशी में अपनी, शुमाली इलाके वो हैं जब गर्मियों में आप वहाँ पे सैर के लिए जाती हैं, जैसे कगान, नारान, गिलियात वगैरह है, और वहाँ की खूबसूरती से भी आप कितनी मालामाल होती हैं। इसकी दिलकशी और खूबसूरती को देखकर आप कितनी खुश होती हैं। गर्मियों के मौसम में ना सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं। गर्मियों में हमारे मुल्क के नहीं बल्कि गैर मुल्की सैर करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के मौसम और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ के जो ठंडा मौसम होता है और कुदरत की हसीन चीज़ों को देख के वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सवात, बैरैन, कलाम, एबटाबाद, गिलियात, कागान और नारान वगैरह में हर तरफ कुदरती हुस्न के जलवे बिखरे पड़े हैं। इन जगहों पे आप जा गई हैं और आपने देखी भी है कितनी खूबसूरत जगह हैं। देखिए हर तरफ कुदरती हुस्न के जलवे नज़र आते हैं। बर्फ़बारी के सबब इन इलाकों में सर्दियों का दौरानिया मुल्क के दीगर इलाकों की निस्बत ज़्यादा होता है।
जब यहाँ बर्फ़बारी सर्दी में पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये तो और भी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। सड़कों के जाल बिछने और सहूलियात मुयस्सर आने की वजह से अब अक्सर लोग सर्दियों में बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी इन इलाकों का रुख करते हैं। अब तो सड़कें और इतनी ज़्यादा आरामदेह हो गई हैं और सहूलियात हमें मुयस्सर हो गई हैं कि और लोग भी इस बर्फ़बारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इन इलाकों में जाते हैं। अब तो सवात के एक मकामी मालम जब्बा में स्काइंग के मुकाबले भी होते हैं। इनके अलावा सूबे जनूब में वाक़या कुछ इलाके मसलन हंगू और बाड़ा चनार में भी इस मौसम सर्द है। इसके अलावा सूबे के जनूब में वाक़या कुछ इलाके मसलन हंगू और बाड़ा चनार भी सर्द मौसम और खूबसूरत कुदरती मनाजिर की बदौलत सयाहों के लिए अहम मकामात बन सकते हैं। अब आपको समझ आ गई है, हंगू और बाड़ा चनार भी अपने सर्द मौसम की वजह से और खूबसूरती की वजह से अपनी सैर करने वालों के लिए एक अहम मकामात बन सकते हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीम के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस पैराग्राफ में हम अपने शहर में मौजूद तालीम पर कितनी तवज्जो दी रही है और यहाँ पे क्या क्या है अब पढ़ेंगे। हुकूमत की कोशिश है कि सूबे का कोई बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम न रहे, यानी यहाँ का कोई बच्चा भी तालीम से महरूम न रहे। इस मकसद के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है। तालीमी इदारों में मयारी तालीम का ख़ुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। सूबे के एक अहम शहर एबटाबाद को तो स्कूलों का शहर कहा जाता है। एबटाबाद में इतने ज़्यादा स्कूल हो गए हैं कि यहाँ पे इसको स्कूलों का शहर कहा जाता है। पूरे मुल्क में लोग अपनी बच्चों को मयारी तालीम दिलाने के लिए यहाँ भिजवाते हैं। पूरे मुल्क से लोग बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए इस शहर भिजवाते हैं। सूबे के अहम और तारीख़ी तालीमी इदारों में हमारे सूबे में जो अहम और तारीख़ी इदारों में एडवर्ड कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की कोशिशों से सूबे भर में यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अब मज़ीद हमारे सूबों में यूनिवर्सिटियों को कायम करने के लिए सोचा जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की में जहाँ तालीम अहम किरदार अदा करती है, वहाँ सेहत की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हम अपनी जो मौजूद डिस्पेंसरीज़ हैं और अस्पताल हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मुल्क के दीगर सूबों की तरह सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत का महकमा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। फ़ाल का मतलब क्या है, हमने क्या कहा है कि यहाँ पे महकमे इसको होशियार मतलब और भी इसको महकमे का सेहत का फ़ाल मतलब फ़ेल की जमा भी आपका फ़ेल मतलब अहम काम कर रहा है, किरदार अदा कर रहा है, अहम काम कर रहा है। हुकूमत की कोशिशों से हर गाँव में बुनियादी मरकज़ सेहत कायम किए जा रहे हैं और हर ज़िले की सतह पर तमाम सहूलियात से आरास्ता हस्पताल मौजूद हैं। इनके अलावा ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। समझ आ गई सारे बच्चों को कि ख़वातीन और बच्चों की सेहत पे भी ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही, क्योंकि जब ख़वातीन ही अच्छी होंगी तो वो घर के कामकाज भी अच्छे तरीके से, अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे तरीके से करेंगी। सूबे खैबर, अब यहाँ पे लोग क्या क्या काम करते हैं इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। सूबे खैबर पख्तूनख्वा की कसीर आबादी में देहात में, कसीर ज़्यादातर आबादी देहात मतलब गांव में रहती है। इन लोगों में ज़्यादातर का ताल्लुक ज़राअत के पेशे से है। ज़राअत का पेशा पता है ना, खेती बाड़ी से है। यहाँ की अहम पैदावार में गन्ना, चावल, मकई और तंबाकू शामिल है। गन्ना भी आप पता है, चावल भी पता है, मकई का आटा पकाती हैं और तंबाकू ये भी आपको पता है। सूबे में निहायत आला दर्जे का तंबाकू पैदा किया जाता है। तंबाकू एक ऐसी चीज़ होती है जो सिगरेट के अंदर भी मौजूद होता है। आपको बच्चों आपको पता है ना कि सिगरेट के अंदर जो होता है वो तंबाकू टाइप की उसको कहा जाता है, जो दुनिया भर में बरामद किया जाता है। बरामद और दरामद का पता है ना, बरामद दरामद, भेजना लाना, तो ये भेजा जाता है, बरामद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। मुख्तलिफ हमारे मुल्क में मुख्तलिफ सब्जियाँ काश्त की जाती हैं खेतों में। आपको पता है कि खेतों में जब किसान फसल बोता है तो उसमें से मुख्तलिफ सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह वहाँ पे उसमें काश्त की जाती हैं।
جو صبح کے لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی ہیں، جو صبح میں ہماری ساری ضروریات کو، جس میں ہم مختلف قسم کی سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔